Good morning, student. So in today's class we are going to start the next topic, that is pH. So in our previous classes we have discussed about how to calculate Ka and Kb dissociation constant for acid as well as base. So regarding this you have some problems, but still I'll give you the solution of that problem. So but it is still very simple. First, if you are well known to Ostwald dilution law, so how the dissociation takes place, and for a weak acids how the Ostwald dilution law is valid. So you can easily go through these type of problems regarding the Ostwald dilution law. So today's topic is pH, which is very simple topic. So जैसा कि इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड, और आपने भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि पीएच क्या है, और बेसिकली एक बेसिक सा क्राइटेरिया होता है कि एक स्केल है दैट इज़ कॉल्ड पीएच स्केल. तो अगर पीएच का वैल्यू 7 है, हमने ये मतलब पढ़ा हुआ है, सॉल्यूशन इज़ गोइंग टू बी न्यूट्रल, और 7 से कम है तो दिस स्केल इंडिकेट्स एसिडिक, एंड 7 से ज़्यादा है अप टू 14, या ये वेरी भी कर सकता है स्केल. तो ये आपका ये कहलाता है बेसिक. ठीक है, एसिडिक और बेसिक. तो सिंपल सी चीज़ है, बस वही चीज़ है, पीएच की स्केल के ऊपर कोई चेंज नहीं है. बट बेसिक यहाँ पर हमको क्या समझना है, hydrogen ion concentration in any solution can vary with a wide range from 1 to 10 to the power minus 14 mole dm to the power minus 3. Okay, so a logarithm notation was derived by Sorensen. It was the name of scientist in 1909 to simplify the expression of these quantities. Okay, so this notation is termed as pH scale. This is known as pH scale. So according to the scale, the hydrogen ion concentration H plus are expressed in terms of the numerical value of negative power to which 10 must be raised. That is, you can H ion concentration is 10 raised to the power minus pH. Okay, or simply we can write it pH is equal to minus log H plus ion concentration. So this is the negative sign, so I can write it log 1 over H plus ion concentration. So basics of this, H plus concentration of H plus student. तो ये H plus का concentration आपको confuse नहीं होना है. This is mole dm to the power minus 3, or you can simply take it as mole per liter. This can be taken in mole per liter. Okay, तो उसी तरीके से ये pH हो गया minus log H ion concentration, and similarly we can write POH. अगर बेस है तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन. ओके, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो आप अच्छे से मतलब पढ़ा है इन आप प्रीवियस क्लासेस. सो वहाँ पर हमें क्या पता है, दैट इज PH H आयन कंसंट्रेशन, दैट इज POH 10 to the power minus 14, दैट विल इक्वल टू 14. तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 14. तो ये चीज़ वैलिड कहाँ होती है, ओनली एट 298 केल्विन. You can say 25 degree Celsius पर valid. Okay, so the simple approach toward this pH, तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि ये pH का जो concept है, how we can calculate it. ठीक है, pH calculation point of view आपके लिए important है. So how you can calculate the pH. ठीक है, और यहाँ पर हमने समझ लिया कि pH बेसिकली है क्या, इट इज़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ये क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. अब मैं इस डिटेल में आपको नहीं ले जा रहा हूँ, बट सिंपली हम कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड ये कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो है 10 to the power 0, 10 to the power 0, 10 to the power 0. ओके, तो आप जानते हैं समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. ओके, तो उस केस में देखिएगा ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, 10 to the power 0 इज इक्वल टू 1. और मैं बोल दूं आपसे OH आयन का कंसंट्रेशन दैट इज 10 to the power minus 14, तो pH विल बी इक्वल टू 0. ओके, एंड POH विल बी 14. सो द नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी strongly basic, that will be strong base. अब देखिएगा ध्यान से, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाए 10 to the power minus 2, ओके, H प्लस का कंसंट्रेशन, ऑन दैट केस OH आयन कंसंट्रेशन विल बी, दिस इज 10 to the power minus 2, दिस इज 14, दिस विल बी 10 to the power minus 12.
So in that case pH will be 2. This is 2, 14. So that pOH will be approx 12. pH will be approx, pOH will be approx 12. So this is acidic. This is acidic. Means pH 0, pOH 14, strongly basic, and pH is 2, pOH is for 12. This is acidic. Okay. So simple thing what I want to say कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट पीएच. ओके, तो अगर यहाँ से आपको ये समझना है कि कैलकुलेट पीएच कैसे किया जाएगा. अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी ये चीज़ें होंगी. पीएच कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, इफ़ द एसिड इज वीक इतना % ये डिसोशिएट होगा, उतना % ये डिसोशिएट होगा. बट बिफोर दिस द वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आपको H+ का कंसनट्रेशन मिल रहा है तो डायरेक्ट फार्मूले से आप pH इज टू माइनस log HIN से pH को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए कुछ ट्राई करते हैं प्रॉब्लम्स कि हाउ वी कैन सॉल्व इट. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको मोलर नॉर्मल पे नहीं ला रहा हूँ, देन आई विल गिव यू द सेपरेट नोट ऑन दैट. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 10⁻⁻2 मोलर HCl. सपोज H+ आयन ये कंसंट्रेशन आपको ये दे दिया. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट pH. सो pH इज इक्वल टू व्हाट, माइनस log 10⁻². ओके, तो इसके लिए क्या होता है, log थोड़ा सा आपको log के ऊपर भी रिवाइज करना ये पड़ेगा. हाउ वी कैन सॉल्व द लॉगरिथम. तो देखिए माइनस साइन है, log 10⁻². आप जानते हैं log m⁻n इज इक्वल टू n log m, बेस 10 होगा. ठीक है, माइनस साइन है, 10⁻², n यहाँ -2 है तो -2 बाहर आएगा, -2 log 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 इंटू log 10, बेस 10 ही है. ठीक है, सो pH विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1, log 10 का वैल्यू 1 होता है, दैट इज 2. तो pH कितना आ गया हमारे पास, ये सॉल्यूशन का 2 आ गया. क्लियर है. तो द सिंपल थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड. अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा इस तरह के सिंपल से प्रॉब्लम अब आपसे पूछे नहीं जाएंगे. अब यही चीज़ मैं आपको बोल दूँ. देखिए सपोज यू हैव 10⁻² मोलर HCl है. ठीक है, ये स्टूडेंट अगर इफ़ इट इज़ 100% आयोनाइज्ड और यू कैन से 100% डिसोशिएटेड, अगर ये 100% डिसोशिएट हो गया तो उस केस में हाउ यू कैन कैलकुलेट इट्स pH. अब आप जानते देखिएगा HCl, क्योंकि अब आप ओस्टवाल्ड ये डाइल्यूशन लॉ पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं. तो HCl इज गोइंग टू आयनाइज, दिस इज H+ प्लस Cl नेगेटिव. सो दिस इज 10⁻² मोलर. सो 100%, क्योंकि ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. सो दिस विल ऑल्सो भी 10⁻² मोलर, दिस विल ऑल्सो भी 10⁻² मोलर. सो फाइनली अपने को यहाँ से क्या पता चला कि H+ का कंसनट्रेशन जो है इट इज़ 10⁻² मोलर. So easily you can calculate pH will be equal to minus log HIN, that is 10⁻². pH is equal to minus log 10⁻². So pH will be equal to, this is minus sign, -2 and minus plus 2 log 10. This is base of log 10. So log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो pH will be equal to 2 into 1, that is 2. तो pH of the solution will be equal to 2. ओके, तो सिंपल कुछ लॉग की वैल्यूज़ भी होती हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर आप उनको देख लें तो अच्छा रहेगा. log 2 इज इक्वल टू 0.301 एंड log 3 इज इक्वल टू 0.477. ठीक है, तो कुछ वैल्यूज़ आप log की याद कर लें. log 10 1 हो गया, log 100 ऐसे. देन सिंपल यहाँ पर फर्स्ट थिंग जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन के ऊपर. सिंपल आपको एक फॉर्मूला उठाना है, log pH इज इक्वल टू माइनस log HIN. देखना है स्ट्रॉन्ग वीक कैसे डिसोशिएट होगा. यू कैन ऑल्सो अप्लाई द ओस्टवाल्ड लॉ. और कुछ प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा एक चीज़ और है देखिएगा. अगर आपको मैं क्वेश्चन दूँ आज, कैलकुलेट 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर HCl. दिस इज द क्वेश्चन. 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर HCl, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स pH. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, pH इज इक्वल टू माइनस log 2 इंटू 10⁻⁴ log a इंटू b लगा देना. ठीक है, बस द मस्ट यू हैव टू नो अबाउट द log एंड द कैलकुलेशन. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ logarithm pH. देन हाउ यू कैन कैलकुलेट इट. In the next video we can understand the more realistic problems on pH,
how we can go through this pH calculations for weak acid, for strong acid, if it is that percent, मतलब परसेंट कितना वो डिसोशिएट हो रहा है, और pH से फिर pOH को निकालना. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू, and try to do some more problem from your NCERT book regarding this pH calculation. Definitely from here two question will be definitely coming examinations. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.